Very good morning, class. Okay, we are done with the first chapter of partnership and second chapter in a book. Okay, we have understood each and every concept. Okay, now it's time for you to practice the questions really based on the concepts. I have already given you the questions what you have to do. Okay, practice these questions as much times as much you can. जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपके लिए कॉन्सेप्ट्स ईजी हो जाएंगे, बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. Okay, you have time right now, so you can practice as much times as much you can. Okay, so we are beginning with the next chapter, that is based on goodwill. Next chapter is goodwill and valuation of goodwill. Okay, in this chapter we will learn what is goodwill, okay, and how it is valued. Okay, goodwill का valuation कैसे होता है वो सीखेंगे अपन. First of all, what is goodwill? Goodwill is an intangible asset. We all know goodwill is an intangible asset. We cannot touch or we cannot see the goodwill. Okay, which places an enterprise at an advantageous position. If an enterprise is having goodwill, the enterprise is at advantageous position. होता है कि नहीं होता है? जिस फर्म की goodwill अच्छी होती है उसको advantage मिलता है. How the advantage he gets? What are the advantages he get? He might get raw material or he might get the परचेज एट लोअर कॉस्ट. उसको कम प्राइस कम लगती है जिसका गुडविल अच्छा होता है मार्केट में. ओके, और क्या फ़ायदा होता है जिसके पास गुडविल होती है? सपोज ये परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो उसको जो क्रेडिट पीरियड होता है ना वो दूसरों से हमेशा ज़्यादा मिलता है. जैसे दूसरों को सबको 2 months का टाइम मिल रहा है फॉर पेमेंट, एंड द पर्सन हु इज़ हैविंग गुड गुडविल ही विल गेट 3 months टाइम. द कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फर्म और टूवर्ड्स द कंपनी विच इज़ हैविंग मोर गुडविल. जिसकी गुडविल ज़्यादा होगी कस्टमर्स भी उसके पास ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे. ओके, even if the price of the product is more than the other competitors, then also customers will prefer the company which is having a good goodwill in the market. Okay, so these are the benefits of goodwill. There are more benefits. There can be many more benefits of goodwill. Okay, so these were just an example. So what we can say, goodwill बनती कैसे? How the goodwill generates? Goodwill generates due to the past efforts, made by the enterprise. Enterprise का जो पास्ट में उन्होंने अच्छा वर्क किया होगा, कस्टमर्स को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करी होगी. he would have paid to the suppliers on time. Okay, he would have not cheated with the customers, not with the suppliers, not with the normal public. Okay, so these are just the past efforts of the company or the enterprise. Okay, so there are two types of goodwill. We can classify the goodwill into two types. First is self-generated goodwill and the other is purchased goodwill. And the other is purchased goodwill. Self-generated goodwill means the goodwill which have been produced by or which have been created by the past efforts of the management. मतलब खुद की पास्ट में जो खुद की मेहनत से, खुद की ईमानदारी से कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा के जो गुडविल खुद क्रिएट करता है बिजनेस, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल. दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. द गुडविल क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट बाय इट्स पास्ट एफर्ट्स इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. ओके, नेक्स्ट इज purchased goodwill. So what is purchased goodwill? Let us discuss this. This is the first time we are discussing this. आपके लिए भी नया होगा. आपने ये वाली goodwill self generated का तो नाम सुना होगा, but I don't think you have learned what is purchased goodwill. Okay, what is purchased goodwill? Sometimes what happens, a business is purchased by other business. Suppose there is a firm A and there is firm B. So फर्म ए इज़ परचेजिंग फर्म बी. फर्म ए क्या कर रही है? फर्म बी को परचेज कर रही है. लेट अस सी एन एग्जांपल. ये ए है, ये बी है. ठीक है, तो ए इज़ डूइंग द बिजनेस विथ फर्म ए एंड बी इज़ डूइंग द बिजनेस विथ फर्म बी. सो नाउ ए वांट्स टू परचेज द बिजनेस ऑफ फर्म बी. ए क्या कर रहा है? फर्म बी का बिजनेस परचेज करना चाहता है. ओके, सो फर्म बी agreed. Firm B also wants to sell its business. So B agreed that okay, I will sell you my business. Now suppose the assets of B, the assets of firm B are of rupees 10 lakhs, and the liabilities
ऑफ बी आर ऑफ रुपीज़ 2 lakhs। एसेट्स कितने की है? 10 lakhs की है, और लाइबिलिटीज़ कितने की है? 2 lakh, सॉरी, एसेट्स 10 lakh की है और लाइबिलिटीज़ कितनी है? 2 lakhs की। सो नेट ऑफ पेमेंट कितना आता है? नेट एसेट्स कितनी आती है? इसको कहते हैं नेट एसेट्स, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कम्स नेट एसेट्स। मतलब इस फर्म की टोटल वैल्यू कितनी है? 8 लाख रुपीज़। अगर कोई परचेज करने जाओगे तो उसकी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू का पैसा आप दे दोगे, माइनस क्या कर दोगे? उसकी जो लाइबिलिटीज़ भी आपके पास आ रही है वो डिडक्ट करके ही उसको आप पेमेंट करोगे ना, ठीक है ना। सो व्हाट यू आर पेइंग, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। आप कितना पे करोगे? 8 lakhs पे करोगे फर्म बी को उसका बिजनेस परचेज करने के लिए, इससे ज़्यादा तो नहीं दोगे ना। बट सपोज A goes to B goes to A, B goes to A and asks for payment of rupees 10 lakhs, asks for payment of rupees 10 lakhs, okay, ठीक है। तो B goes to A and asks for 10 lakh rupees. So A told B कि why would I pay you 10 lakh rupees, I will only pay you 8 lakh rupees, I will only pay you 8 lakh rupees। मैं क्यों आपको 10 लाख रुपए दूँ? आपकी वैल्यू तो 8 lakhs की बन रही है, 10 lakhs का किस लिए दूँ? Then B says to A that my market in market my goodwill is there, मेरी goodwill है market में। This 2 lakh extra I am asking is of my goodwill in the market that you will be using. Suppose firm B has a good reputation, good name in the market. So now that name and that reputation will be utilized by A use करेगा ना उस reputation को। So by calculating their valuation methods to calculate goodwill, कैसे goodwill calculate कर सकते हो आप? self generated goodwill, उसके valuation होता है, ठीक है। तो A had done the valuation, B had done the valuation and B told that these 2 lakhs extra is of my reputation and my name that you will be using from now, so you need to pay me 10 lakh rupees। 2 lakh extra is of goodwill, okay। So A agreed to pay rupees 10 lakh। A ने बोला okay, I will pay you 10 lakh। So the 2 lakh extra amount paid by A is A's purchased goodwill। A के लिए ये क्या हो जाएगी? Purchased goodwill। 2 lakhs की उसने क्या खरीदी है? Goodwill खरीदी है, ठीक। 10 lakhs के assets लिए, 2 lakhs का liabilities भी लिए, ठीक है। Along with this, he had also purchased goodwill of rupees 2 lakh। B का नाम भी खरीदा है उसने 2 lakhs के देके, ठीक है। B's reputation also he has purchased by giving 2 lakhs rupees, okay। Now this 2 lakhs is purchased goodwill for A, okay। And yes, this goodwill of rupees 2 lakh will be shown in his books of accounts on the asset side as intangible assets। 2 लाख रुपीज़ की वैल्यू पे वो अपने एसेट साइड में दिखाएगा गुडविल, ठीक है। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल आर नेवर शोन इन द एसेट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होती है। अगर हो रही होती तो ये बी की एसेट्स में भी होती ना, तो ऑलरेडी टेक केयर कर लिया होता इस 2 लाख रुपीज़ का। बट नो, एज पर AS6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, सॉरी AS6 नहीं 26, according to accounting standard 26 intangible assets, it tells that only and only purchased goodwill can be mentioned, can be recorded in books of accounts and not self generated goodwill, okay, understood। what is AS? चलो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ AS क्या होते हैं। these are accounting standards। accounting standards are, अब इनका नाम चेंज होके IND AS हो गया है। AS से अब इनका नाम चेंज होके IND AS हो गया है। क्या हो गया? IND AS हो गया है, ठीक है। बट अभी भी अपन पुराना वाला वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो IND AS हो गया है इसका नाम। सो व्हाट आर दीज IND AS और AS? ये क्या होता है? दीज आर अकाउंटिंग frameworks, accounting rules and regulation issued by Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, okay। तो ये लोग ऐसे इशू करते हैं स्टैंडर्ड्स ताकि जितने भी लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऑल द पीपल इन द कंट्री, पूरे इंडिया में जितने भी लोग अकाउंटिंग करते हैं उन सब की अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइज हो, मतलब एक जैसी हो सबका, ओके। इफ़ दिस वुड हैव नॉट बीन इशूड, सम ऑफ देम हैज़ taken self generated assets
देयर एसेट्स, उसमें उन्होंने कुछ लोग ऐसा भी कर देते कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू करते और उसको बुक्स में शो कर देते, और कुछ नहीं करते। तो ये मिसमैच हो जाता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइज नहीं रहती किसी के बीच, सबकी एक जैसी नहीं होती। तो इसीलिए बहुत सारे एएस इशू करे हैं, इंड एस इशूज़ करे हैं ICAI ने। ओके, दीज आर फॉर दिस पर्पज। You will study these AAS, Ind AS if you go for doing CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करने जाएंगे आप लोग, तो आप लोग ये सब सीखेंगे क्या होता है डिटेल में। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, व्हेन देयर इज अ नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, कब ज़रूरत होती है गुडविल की वैल्यूएशन करने की? तो देयर आर 6 places where we need to value goodwill. First is when there is change in the profit sharing ratio. When there is a change in the profit sharing ratio, suppose there are two partners, partner A, partner B. Okay, they were sharing profits in the ratio 3:2. 3:2 means A was having more share of profit and B was having less share of profit. Now suppose they decided from now on, suppose from new year, okay, when the new year begins, they decided that they will share the profit in the ratio 1:1, means equally बांटेंगे। अब वो लोग प्रॉफिट उन्होंने डिसाइड किया, ओके, सो दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। बट व्हाट ए सेज, व्हेन माय शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज मोर, दैट टाइम द फर्म हैज़ अर्न गुडविल। जब मेरा प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा था तो उस टाइम अपन ने जो गुडविल अर्न करी थी उसका हिस्सा मुझे चाहिए पुराने वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही। ऑब्वियसली ए विल से that when my profit sharing was more, the firm has earned goodwill. Past years में उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो फर्म ने गुडविल अर्न करी होगी। So A is telling that I want my share of profit. I want my share of profit. Why is asking for that? Because his share is now reduced. इसका नुकसान हुआ है। A को क्या हुआ, एक्चुअली नुकसान हुआ है। पहले A को ज़्यादा मिल रहा था, बी को कम मिल रहा था, अब दोनों को बराबर मिल रहा है, तो बी को तो फायदा ही हुआ है उसके अंदर, बट ए को क्या हुआ, नुकसान हुआ है। बट देन ए विल से दैट द फर्म हैज अर्नड द गुडविल एट द टाइम व्हेन आई वाज हैविंग मोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो आई वांट दैट अमाउंट ऑफ गुडविल, आई वांट दैट अमाउंट ऑफ गुडविल। सो दैट टाइम वी विल कैलकुलेट, दैट टाइम वी विल वैल्यू द गुडविल, ओके, फॉर दिस पर्पज। First is when there is change in profit sharing ratio. Second is when a new partner is admitted. When a new partner is admitted, what happens? Suppose there are two partners A and B, okay, and they are admitting C as their new partner. C को नए partner में ले रहे हैं वो लोग अब, ठीक है। तो what will happen? सी को एडमिट करें तो सी क्या करेगा, कुछ कैपिटल लेके आएगा साथ में, कुछ कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी ना, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। सो ए एंड बी टोल्ड दैट दिस मच इज योर कैपिटल। सपोज दे विल बी शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1 एंड दे टोल्ड कि आपको इतनी कैपिटल लेके आनी है, ओके। ए एंड बी, ओके, सी टोल्ड ओके आई विल ब्रिंग द कैपिटल, बट देन ए एंड बी डिस्कस्ड एंड टोल्ड टू सी दैट ब्रिंग 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे सी को। देन सी आस्क्ड व्हाई शुड आई ब्रिंग 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा? देन ए एंड बी टोल्ड दैट when you were not the partner of the firm, we had earned a reputation in the market, we have earned a goodwill in the market by our efforts, by our हमने बहुत मेहनत करके बहुत नाम कमाया है मार्केट में, तो तुमको तो वो डायरेक्टली मिल जाएगा वो नाम। जिस चीज़ की मेहनत हमने करी है उसका फ़ायदा तुम ऐसे ही उठा लोगे बिना कुछ कंट्रीब्यूट किए, ना तो तुम्हारे एफर्ट्स लगे ना कुछ लगे। सो व्हाट विल वी डू, we will value our reputation, we will value our goodwill, and according to that in your profit sharing ratio you will have to bring in the amount of goodwill also. आपको goodwill भी लानी पड़ेगी अगर आपको ये नाम, हमारा नाम जो हमने मेहनत करके कमाया है आपको ऐसे ही मिल रहा है यूज़ करने के लिए, so you will have to pay us for that. ओके, सी को ये बात समझ में आ गई एंड सी ब्रिंग्स इन ₹1 लाख एज एक्स्ट्रा, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड इट इज़ वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। कैसे वैल्यू करते हैं वो इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, थर्ड इज व्हेन पार्टनर रिटायर्स और डाइज। व्हेन पार्टनर रिटायर्स और डाइज, ओके, व्हेन पार्टनर विल रिटायर, जब पार्टनर रिटायर होगा या उसकी डेथ हो जाएगी,
तो क्या होगा, उसने जितना भी मनी लगाया हुआ है, उसने जितना भी पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल दैट ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फर्म, द कैपिटल विल बी पेड बैक टू हिम। उसको उसकी कैपिटल तो वापस देंगे ना, जब वो रिटायर हो रहा है तो उसको उसका पैसा वापस दे देंगे, या उसकी डेथ हो गई तो उसको उसका पैसा वापस दे देंगे, ठीक है। तो ही विल बी पेड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ही विल बी पेड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट द फर्म हैज़ अर्न टिल नाउ, ओके, जितना प्रॉफिट अर्न किया वो मिलेगा। ही विल गेट हिज अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन, एवरीथिंग ही विल गेट, ओके। ये सब डिसाइड हो गया। देन सपोज ए बी एंड सी वर पार्टनर्स एंड सी इज रिटायरिंग, सी रिटायर हो रहा है, तो ए एंड बी ने उसको उसकी कैपिटल दे दी, प्रॉफिट दे दिया, सब दे दिया, सब कुछ दे दिया। देन सी कम्स टू ए एंड बी दैट I want the money of my efforts that brought you the reputation, मेरे एफर्ट्स से, मेरी मेहनत से जो फर्म ने ये रेपुटेशन मार्केट में कमाई है, जो गुडविल अर्न करी है, आई वॉन्ट दैट शेयर ऑल्सो, आई वॉन्ट द शेयर ऑफ गुडविल ऑल्सो। दैट टाइम व्हेन ही इज़ रिटायरिंग और द डेथ ऑफ पार्टनर, दैट टाइम, उस टाइम क्या होगा, फिर से गुडविल कैलकुलेट होएगी कि फर्म की गुडविल कितनी है, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी पेड बाय ए एंड बी टू द रिटायरिंग पार्टनर सी, ओके। जब रिटायर होगा तो ऑब्वियसली मांगेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मार्केट में रेपुटेशन है इतनी फर्म की, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए ना, ये तो मैंने लगाया था, तो कुछ एक्स्ट्रा भी तो दो, इतना मार्केट में नाम हो गया है, मेरी वजह से भी हुआ है, मैंने भी अपने एफर्ट्स करे थे। So A and B will then at that time the goodwill will be valued and his share will be paid. Okay. Again, fourth is when partnership firm is sold as going concern. When partnership firm has been sold as going concern. इसका मतलब क्या हुआ? Suppose there are two partners A and B. They are doing business in partnership form. Okay, partnership, as a partnership वो लोग business run कर रहे हैं, but now they decided that they are not able to work anymore and they want to close the business. वो लोग चाहते हैं कि business close करें, but at that point of time C and D came to A and B that you don't close the business, you just give us the business as it is and we will pay you the amount. We will pay you the money of the related to the assets and everything we will pay you, okay. ये डिसाइड हुआ, तो क्या हुआ, A and B की टोटल एसेट्स वर सपोज 10 lakhs and their liabilities were 1 lakh. So C and D came to A and B, take this 9 lakh rupees, 10 lakh minus 1 lakh, 9 lakh rupees, and give your firm to us, give your business to us as it is. Then A and B told, why only 9 lakh? You will be using the reputation, the name of the firm which we have earned in our past, जो हमने हमारे एफर्ट से, हमारी मेहनत से ये पैसा ये नाम कमाया है, ये गुडविल कमाई है, मार्केट में रेपुटेशन कमाई है, वी हैव अर्न द रेपुटेशन दैट यू विल बी यूजिंग एज इट इज़। आप लोग ये इसको ऐसे कैसे यूज़ करोगे, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे नाम का यूज़ करके आपको बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है, आपको फ़ायदा ही होगा इससे। अगर इफ़ सी एंड बी टोल्ड, इफ़ यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस विथ न्यू नेम राइट नाउ, you will not get market support, but when you will be using our name, हमारा नाम जब यूज़ करोगे तब आपको मार्केट सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि हमारा मार्केट में बहुत नाम है और आप हमारे नाम से बिजनेस करोगे, okay. So if you are taking the business as it is and the name of the business also, then you will have to pay us some extra amount of, and that extra amount is the goodwill, okay. So that time also goodwill is calculated or valued. Fifth is when two or more firms are amalgamated. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा फर्म आपस में साथ में मिलके काम करना स्टार्ट करती है। जैसे सपोज देयर आर टू फर्म्स A, B, ओके, नाउ दे आर मर्जिंग, दे आर कमिंग टुगेदर एंड स्टार्टिंग द बिजनेस एंड स्टार्टिंग डूइंग द बिजनेस टुगेदर, साथ में काम करने वाली है, ठीक है, साथ में काम करने लगेगी, ओके. सो that time also the amount of goodwill is valued, the amount of goodwill is calculated. Why? Because suppose it happens that A has a very good reputation in the market and B does not have a very good reputation in the market, so it will help the firm B to use the reputation of firm A. फर्म जब दोनों साथ में काम करेगी तो फर्म बी को क्या हो रहा है, एक तरह से हेल्प हो रही है, क्योंकि ए का नाम बहुत अच्छा है मार्केट में, ए की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, बी को हेल्प हो रही, तो बी को उस टाइम मर्ज करते टाइम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लाना पड़ेगा एज गुडविल एंड विल बी पेड टू फर्म बी को देना पड़ेगा. एट दैट टाइम ऑल्सो द गुडविल इज कैलकुलेटेड. ओके,
Last time when the goodwill is calculated is when the partnership firm is converted into company. जब पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में बदल देते हैं, that time goodwill is calculated. Okay, these are the 6 places where goodwill is to be calculated. Okay, now how to calculate goodwill? There are few methods. There are actually 3 methods to calculate goodwill. First is average profit method, second is super profit method, and third is capitalization method. These are 3 methods. Okay, in average profit method there are 2 types, simple and weighted average, and in capitalization method again there are 2 types, capitalization of super profit and capitalization of average profit. This we will discuss it in tomorrow's lecture. Okay, till then, bye. Practice the questions of the last chapter. Okay, bye.